بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ افغانستان سے افراتفری کے عالم میں باہر نکلنے پر امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد نے استعفیٰ دے دیا۔ کہا حالات منصوبے کے مطابق نہیں رہے، آنے والے دنوں میں وجوہات بتائیں گے۔ ماسکو میں چہارشنبے کو افغانستان کانفرنس، انڈیا بھی حصہ لے گا۔ عمران خان نے کہا اثاثے ریلیز کیے جائیں۔ افغانستان کی صورتحال پر ایرانی وزیر خارجہ کی OIC چیف سے بات چیت، کہا داعش مسلکی اختلافات کو ہوا دینا چاہتی ہے۔ انڈیا کی ایک اور سب مرین کو پاکستانی علاقے میں روکا، اسلام آباد نے کیا دعویٰ۔ بات چیت کا مطلب پابندیاں ہٹانا ہے، ابراہیم رئیسی کا انٹرویو، امریکہ نے کہا جمعرات کی میٹنگ درمیانی قدم ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی ساحلوں پر اچانک جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ مڈل ایسٹ میں نئے اتحاد پر بات چیت، انڈیا، اسرائیل، UAE اور امریکہ کے ساتھ تعاون بڑھائے گا۔ میلاد النبی پوری دنیا میں منایا گیا، ابراہیم رئیسی نے کہا مسلم ملک اتحاد کو مضبوط کریں۔ اتراکھنڈ میں زبردست بارش، 25 ہلاک، نینی تال باقی ریاست سے کٹ گیا، وزیر اعظم نے کی چیف منسٹر سے بات چیت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان نیوی نے انڈیا کی ایک اور سب مرین کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے اور اسے انڈین نیوی کے لیے بے عزتی کی بات قرار دیا ہے۔ پاکستان نیوی نے کہا کہ اس نے بحیرہ عرب یا عربین سی میں اپنی سمندری حدود میں انڈیا کی سب مرین کو روکا اور اسے وارننگ دیتے ہوئے واپس بھیج دیا۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ حالیہ برسوں میں یہ تیسرا موقع ہے کہ پاکستان نیوی نے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے پر انڈین سب مرین کو واپس بھیجا یا ایسی کوشش کو ناکام بنایا۔ پاکستانی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 16 اکتوبر کو یہ واقعہ پیش آیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک ویڈیو فوٹیج بھی جاری کیا ہے۔ افغانستان سے افراتفری کے عالم میں امریکہ کے باہر نکلنے کے بعد افغانستان سے متعلق واشنگٹن کے نمائندے زلمے خلیلزاد نے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ جب سے افغانستان پر طالبان نے قبضہ کیا ہے، زلمے خلیلزاد پر کافی دباؤ تھا۔ زلمے خلیلزاد کی جگہ ان کے نائب
टॉम वेस्ट लेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मगरबी मुल्क अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात पर अमरीकी सफारत खाने के साथ मिलकर काम करेंगे। इस सफारत खाने का दफ्तर दोहा में खोला गया है। ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि वो अमरीकी अवाम की कई दहाकों तक खिदमत के लिए जुल्म खलीलजाद का शुक्रिया अदा करते हैं। मुतालिका ओहदेदारों ने बताया कि खलीलजाद ने जुमे को इस्तीफ़ा दिया। ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब बाइडेन हुकूमत ने अफगानिस्तान से अमरीकी वापसी के बाद तालिबान से पहली बार बातचीत की है। ये बातचीत कुछ दिन पहले दोहा में हुई। सेक्रेटरी ब्लिंकन को एक खत लिखते हुए खलीलजाद ने अपने रिकॉर्ड का बचाव किया, लेकिन ये बात मानी कि कुछ कमियां रह गई हैं। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मामलात वैसे नहीं हुए जैसे सोचा गया था। इसके लिए वजह बहुत पेचीदा है और वो आने वाले दिनों और हफ्तों में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। खलीलजाद अफगानिस्तान में पैदा हुए। 2018 से वो इस ओहदे पर थे। उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की क़यादत की थी, जिसके नतीजे में फरवरी 2018 का समझौता हुआ। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ के बावजूद खलीलजाद को जो बाइडेन ने अपनी हुकूमत में बरकरार रखा। खलीलजाद ने ब्लिंकन से कहा कि ये ओहदा छोड़ने के लिए सही वक्त है, क्योंकि हम हमारी अफगान पॉलिसी के एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिको मैगज़ीन के लिए लिखते हुए कहा कि कल मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दूंगा। खलीलजाद ने ट्रंप और जो बाइडेन दोनों के दौर में काम किया है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अफगानिस्तान में दाइश के हमलों का मकसद बहरान से दो चार मुल्क में मसलकी इख्तिलाफात को बढ़ाना है। उन्होंने OIC से कहा कि वो इस तरह के हमलों की मजम्मत करे। OIC सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल उस्मान से फ़ोन पर बातचीत करते हुए आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इंतहा पसंद ग्रुप से खित्ते को सबसे अहम चैलेंज का सामना है। अफगानिस्तान में दाइश की तरफ से दहशतगर्द हमलों की निशानदही करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुसलसल 2 जुमों को अफगानिस्तान की 2 शिया मस्जिदों में धमाके हुए थे, जिनमें सैकड़ों लोग हलाक और जख्मी हुए। दाइश या आईसिस की अफगान शाख दाइश खुरास्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। OIC सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द ग्रुपों का महफूज अड्डा बनने से रोकना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जिसमें तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक, ख़ासतौर पर औरतों के हुकूक का लिहाज रखना चाहिए। उन्होंने ये बात साफ की कि OIC इस्लाम के मानने वालों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करती और उसका मानना है कि तमाम मुसलमान बराबर हैं। OIC सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि किसी भी मज़हब के या मसलक के मानने वालों को दहशतगर्द हमलों में निशाना नहीं बनाना चाहिए। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हालिया बातचीत का जिक्र करते हुए OIC सेक्रेटरी जनरल ने उम्मीद जाहिर की कि इस तरह की बातचीत और राब्तों से दोनों मुल्कों के लिए अच्छे नतीजे निकलेंगे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया अरसे में इराक में बातचीत के कई दौर हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया से कहा है कि वह अफगानिस्तान के असास से रिलीज़ करे और तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत करे और मुल्क को मौशी तबाही से बचाने के लिए इंसानी मदद दे। इमरान खान ने जापान के सफ़ीर से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात करते हुए ये बात कही। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अफगानिस्तान के असास से रोक दिए गए हैं या फ्रीज़ कर दिए गए हैं। इमरान खान ने कहा कि एक पुरअमन और मुस्तहकम या मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक़ में है। अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को कॉन्फ्रेंस 4 शंबे को होगी। अमेरिका ने कहा है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगा। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। इस मीटिंग में इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और तालिबान हिस्सा लेंगे। ये दूसरा मौका है जब इंडिया और तालिबान के नुमाइंदे आमने सामने होंगे, सरकारी तौर पर बातचीत में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कतर में इंडिया के सफ़ीर ने तालिबान के ओहदेदार से दोहा में मुलाकात की थी। ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर बातचीत में संजीदगी का मतलब पाबंदियां हटाना है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने बताया कि बातचीत के लिए कोई शर्तें नहीं है, लेकिन तेहरान उम्मीद कर रहा है कि पाबंदियां हटाई जाएंगी। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर ने कहा कि ईरान वियना बातचीत पर वापस लौटने के ताल्लुक से संजीदा है। एक दिन पहले खबर आई थी कि जुमेरात से अमरीका और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत शुरू होगी। अमरीका ने इस दौरान कहा है कि ब्रसल्स में बातचीत से पहले बातचीत एक दरमियानी कदम है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह बात कही। उन्होंने अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम दरमियानी कदम चाहते हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी चाहते हैं कि वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत जल्द से जल्द शुरू की जाए।
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مسلم ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹھوس تعلقات بنائیں اور ایسا کوئی بیان نہ دیں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جن سے اختلافات پیدا ہوتے ہوں۔ اسلامی اتحاد پر 35ویں عالمی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے رئیسی نے اسلام کے مختلف مکاتب فکر کو یکجا کرنے والے ورلڈ فورم کے مرحوم سیکریٹری جنرل آیت اللہ محمد علی تسخیری اور ریولیوشنری گارڈز کے سابق کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رئیسی نے کہا کہ جنرل سلیمانی کی محنت اور آیت اللہ تسخیری کے فیصلوں کی وجہ سے مسلم دنیا میں کئی شبہات دور ہوئے۔ انہوں نے مختلف مسلکوں کے درمیان اتحاد کو ضروری قرار دیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں میں اتحاد کا ذریعہ قرار دیا۔ رئیسی نے مسلم امت سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو عالمی گھمنڈ اور سامراجی طاقتوں کے چنگل سے آزاد کرائیں۔ رئیسی نے فلسطین مسئلے پر توجہ ہٹانے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ مسلم دنیا کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قیمت پر فلسطین مسئلے کو اوجھل ہونے نہ دیں۔ انہوں نے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ جہالت، سامراجیت اور داعش جیسے دہشت گرد گروپس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لیے اسلامی بیداری کا استعمال کریں۔ رئیسی نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ امریکہ کی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلیری کلنٹن نے یہ بات مانی تھی کہ امریکہ نے داعش کو بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ اب لبنان اور افغانستان میں سازشیں کی جا رہی ہیں جس طرح پہلے عراق اور سیریا میں کی گئیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان سازشوں پر نظر رکھی جائے اور مسلم اسکالرس اور علماء نوجوانوں کو اس طرح کے فتنوں سے بچائیں۔ انہوں نے مسلم ملکوں کے درمیان سائنس، کلچر اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ اس 35ویں ہفتہ وحدت کانفرنس میں سینکڑوں مسلم اسکالرز حصہ لے رہے ہیں جن کا تعلق دنیا کے الگ الگ ملکوں سے ہے۔ اس طرح کی کانفرنس دنیا بھر میں رکھی جاتی ہیں۔ حیدرآباد کے نور خان بازار میں بھی تنظیم جعفری کی طرف سے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہر سال کی طرح ہفتہ وحدت کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں مختلف مسلکوں سے تعلق رکھنے والے علماء اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتیں حصہ لیتی ہیں۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے 27 مارچ کو الیکشنز کرانے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ اس طرح وزیر اعظم نجیب میقاتی کے پاس IMF سے بحالی کا منصوبہ منظور کرانے کے لیے کچھ مہینوں کا وقت ہے۔ لبنان بدترین معاشی صورتحال اور بحران سے دوچار ہے۔ بلیٹن کے اس حصے میں جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ اسرائیلی فوج نے فلسطین کے تمام ساحلی علاقوں میں اچانک فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ یہ مشقیں نیوی کی جنگی تیاریوں کا حصہ ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ پورے ساحلی علاقوں میں مشقیں شروع ہو رہی ہیں۔ ان میں اسرائیل نیوی کے جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں بندرگاہ سمندروں کے اندر ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مشقیں پہلے سے طے شدہ سالانہ مشقوں کا حصہ ہے اور ان کا مقصد فوج کی جنگی صلاحیتیں بڑھانا ہے، لیکن ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ نیوی چیف ایڈمرل ڈیوڈ سلاما نے ان مشقوں کو اچانک شروع کی گئی سرگرمی بتایا ہے۔ یہ مشقیں نارتھ میں لبنان اور ساؤتھ میں غزہ کے قریب شروع کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ، اسرائیل اور UAE کے فارن منسٹرز کے ساتھ مڈل ایسٹ اور ایشیا میں تعاون بڑھانے کے بارے میں بات چیت کی۔ جے شنکر ان دنوں اسرائیل کے 5 دن کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے ایک دن پہلے اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لاپڈ سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد چاروں ملکوں کے وزیروں کی ورچوئل میٹنگ ہوئی۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اس ورچوئل میٹنگ میں حصہ لیا۔ چاروں لیڈرز نے خطے کے تعلق سے اپنے خیالات پیش کیے۔ جے شنکر نے بعد میں ٹویٹ کیا کہ یہ بہت کارآمد میٹنگ تھی جس میں معاشی ترقی اور عالمی مسائل پر تعاون کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے بلنکن کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اس طرح کے فورم سے تعاون میں اضافہ ہوگا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ بلنکن اور دوسرے لیڈرز نے ایشیا میں معاشی، تجارتی اور کلائمیٹ چینج اور انرجی اور سمندری سیکیورٹی جیسے مسائل پر بات چیت کی۔ ایک دن پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ چاروں ملک دوسرا کواد گروپ بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ بلنکن نے اسرائیل، UAE اور انڈیا کو 3 اہم اسٹریٹجک پارٹنرز قرار دیا۔
यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अल निहान ने इस तरह का फोरम बनाने की तजवीज़ पेश करने पर ब्लिंकन और लैपिड का शुक्रिया अदा किया। यूएई के वज़ीर ने एक बयान में कहा कि जयशंकर पुराने दोस्त हैं। इंडिया और यूएई के दरमियान कई शोबों में मजबूत रिश्ते हैं। अगस्त 2020 में इसराइल, यूएई और अमरीका ने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के जरिए अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इंडिया इस समझौते से बहुत खुश है और उसे मिडल ईस्ट में अमन के लिए बहुत अहम करार देता है। इंडिया इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान दोस्ती को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीलंका में मुसलमानों को इम्तियाजी सलूक, हरासानी और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका में 2019 में ईस्टर हमलों के बाद से मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत में इजाफा हुआ है। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत की जज्बात नई बात नहीं है, लेकिन हालिया अरसे में हालात बहुत ख़राब हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीलंकन हुकूमत को ऐसे वाक़यात को रोकना चाहिए और मुसलमानों के ताल्लुक से और उनकी हिफाजत के ताल्लुक से अपने फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने अपने वज़ीर दाखिला से कहा है कि वो फौरी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने मजहब का इस्तेमाल करते हुए गड़बड़ पैदा की। उन्होंने अवाम से कहा कि वो सोशल मीडिया पर आने वाली बातों पर यकीन न करें। पिछले चारशंबे को दुर्गा पूजा तकरीब के दौरान कुरान मजीद की बेहुरमती के इल्ज़ाम के बाद मंदिरों पर हमले किए गए थे। इतवार की रात एक हुजूम ने 66 घरों को नुकसान पहुँचाया और कम से कम 20 घरों को आग लगा दी। कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए शेख हसीना ने वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने अवाम से कहा कि वो हकीकत की जांच के बगैर सोशल मीडिया पर आने वाली बातों पर भरोसा न करें। उन्होंने वज़ारत दाखिला से कहा कि वो चौकस रहें और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कदम उठाए। हालिया अरसे में बाज़ जो वाक़यात पेश आए हैं जिनमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उनमें 6 लोग हलाक हुए। कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के हालिया वाक़यात के बाद वादी खासतौर पर श्रीनगर में सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। अहदेदारों ने मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार सुस्त कर दी है। अहदेदारों ने बताया कि सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में कई मीटिंग्स हो रही हैं। श्रीनगर के तमाम इलाकों में कई चेक पॉइंट्स और रुकावटें खड़ी की गई हैं। कई बुलेट प्रूफ मोबाइल बनकर गाड़ियां हसास मकामात पर तैनात की गई हैं। सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में तलाशी के लिए खातून ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने सिविलियन हलाकतों के सिलसिले में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की है। मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि हालिया अरसे में 13 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। इम्कान है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अक्टूबर के आखिर में कश्मीर का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हालिया अरसे में कई गैर मकामी लोगों को और अक़लियती तबक़ात को निशाना बनाया गया है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 2 दिनों में कम से कम 25 लोग हलाक हुए। नैनीताल शहर बाकी रियासत से कट कर रह गया है। रामगढ़ तालाब का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। लोग छतों पर चढ़ गए हैं और मदद की अपीलें कर रहे हैं। रियासत में कई जगह बारिश से तबाही आई है। खबरों में कहा गया कि बद्रीनाथ हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि बारिश के दौरान सड़कों पर मलबा जमा हो गया है। अहदेदारों ने 4 धाम यात्रियों से कहा है कि वो मौसम बेहतर होने तक मंदिरों में न जाएं। हाल ही में केरला में भी तेज़ बारिश थी जिससे काफ़ी तबाही आई। खासतौर पर कोट्टयम और इडुक्की ज़िले बुरी तरह मुतासर हुए जहां कई लोगों की जानें गईं। अहदेदारों ने बताया कि उत्तराखंड के कई मकामात पर लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला को सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। कई घरों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। फौज के हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उतारा गया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये बात बताई। चीफ मिनिस्टर ने हवाई सर्वे करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ मिनिस्टर धामी से बातचीत करते हुए हालात का खुद से जायज़ा लिया। इंडिया के कोविड केसों में और कमी आई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 13,058 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये 221 दिनों के सबसे कम डेली केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 164 मौतें हुई हैं।
इंडोनेशिया के बाली जजीरे को 19 मुल्कों के टूरिस्टों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि जुमेरात से वैक्सीन हासिल करने वाले मुसाफिरों को आने की इजाज़त होगी। इन मुल्कों में सऊदी अरब, यूएई, न्यूजीलैंड, कुवैत, बहरीन, कतर, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, हंगरी और नॉर्वे शामिल है। बाली दुनिया भर के टूरिस्टों में एक मकबूल मकाम है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मीलादुन नबी सल्लम जोश खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई जगह दुरूद सलाम और मीलाद की महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है। जुलूस निकाले जा रहे हैं और गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। हैदराबाद में भी मीलादुन नबी जोश व खरोश से मनाया गया। कई मकामात पर सीरत कॉन्फ्रेंस और जलसे रखे गए। एक दिन पहले शब मीलाद को दारुस्सलाम में रवायती जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लम का एहतमाम किया गया। इसी मकाम यानी दारुस्सलाम पर मंगल को नातिया मुशायरा हो रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीलादुन नबी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। रामनाथ कोविंद ने अपने प्याम में कहा कि हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी मोहब्बत, भाईचारे, उख़ुवत की मिसाल है और वो हमेशा इंसानियत के लिए तहरीक पैदा करते रहे हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हज़रत मोहम्मद ने इंसानियत को मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का दर्ज दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि पूरी दुनिया में अमन कायम होगा और भाईचारे और रहमदिली की कदरें गालिब होंगी। मुल्क के दूसरे मकामात पर भी मीलादुन नबी सल्लम मनाया जा रहा है। बाज़ मकामात पर कोरोना पाबंदियों के साथ जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान में भी मंगल को मीलादुन नबी मनाया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान से अफरा तफरी के आलम में बाहर निकलने पर अमरीकी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने इस्तीफा दे दिया। कहा हालात मंसूबे के मुताबिक नहीं रहे, आने वाले दिनों में वजूहात बताएंगे। मॉस्को में चारशंबे को अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस, इंडिया भी हिस्सा लेगा। इमरान खान ने कहा असासे रिलीज किए जाएं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ईरानी वजीर खारिजा की OIC चीफ से बातचीत, कहा दाइश मसलकी अख्तलाफात को हवा देना चाहती है। इंडिया की एक और सबमरीन को पाकिस्तानी इलाके में रोका, इस्लामाबाद ने किया दावा। बातचीत का मतलब पाबंदियां हटाना है, इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू। अमेरिका ने कहा जुमेरात की मीटिंग दरमियानी कदम है। इसराइली फौज ने फलस्तीनी साहिलों पर अचानक जंगी मशक़ें शुरू कर दी। मिडल ईस्ट में नए इत्तेहाद पर बातचीत, इंडिया, इसराइल, UAE और अमेरिका के साथ ताउन बढ़ाएगा।
میلاد النبی پوری دنیا میں منایا گیا، ابراہیم رئیسی نے کہا مسلم ملک اتحاد کو مضبوط کریں۔ اتراکھنڈ میں زبردست بارش، 25 ہلاک، نینی تال باقی ریاست سے کٹ گیا، وزیر اعظم نے کی چیف منسٹر سے بات چیت۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔